Yeah. Okay, Ashwini ji has started oil pulling, oil massage in the night. Very nice. Thank you, Ashwini ji. And keep practicing it. This is a lifestyle change जो आपको अब यहाँ से आगे तक lifelong follow करना है. Okay, so should I start? Yes, yes, Meena ji, you can do oil pulling after drinking 2 to 3 glass of warm water or normal water. Because now it's summer, so you can have normal good matka water also. Now, so today our topic is bloating. So I just want to know before starting who all are suffering from bloating. So let's keep this session more interactive. Yeah, so Harita is saying okay, Harita. And anybody else? So since how many years are you suffering, Harita? Yeah, we'll start with our presentation. 1 second. Yeah. So what is bloating? Bloating is a feeling that your tummy is overfull or stretched. It happens when the organs in your digestive system are stretched. मतलब पेट खाना खाते ही पेट फूल जाता है. This can be okay. So you're asking about arthritis. That we'll do later on. But this 7 days program is only about gut health and related all issues related to gut health. Right, so we'll discuss about arthritis maybe in another program, and we'll come soon with this topic also. Yeah, so bloating can be when liquid, gas, or solid build up in your part of your gut. And what are the causes of bloating? What are the causes to avoid bloating? Right. So bloating is a common issue that results in a building up the gas in the stomach, and it can affect anyone at any age. ऐसा कोई इसका specific age नहीं है. Although it doesn't impact the digestive system इतना, but bloating can make a person feel quite uneasy. मतलब जिसको होता है that person only can. And bloating, everybody is again different. Like I told yesterday, किसी को सुबह उठते से bloated feel होता है, किसी को after breakfast, dinner या lunch के बाद bloated feel होता है. So there are different things. Now, what are the typical signs of bloating? क्या क्या होता है bloating के symptoms? So abdominal distension होता है, pain and discomfort in the abdomen, excessive belching and flatulence, crumbling and rumbling in the stomach. After consuming a large meal or foods that make the digestive system produce more gas, like beans or carbonated drinks, one can experience bloating symptoms. However, bloating can occasionally happen without binge, overfed, or ingesting food that produce gas. कुछ ऐसा हम खा लेते हैं, अभी किसी को कॉलीफ्लावर या कैबेज से भी ब्लोटिंग हो जाता है. सो एवरीबॉडी इज डिफरेंट. किसी को वो नहीं सूट कर रहा है तो उसको गैस या ब्लोटिंग हो रहा है. Now, causes of bloating we have already seen, but again, certain factors contribute to the painful gastrointestinal condition that result in bloating. Besides an individual's diet, कुछ cases में the cause of bloating may be underlying medical condition. कुछ cases normal होते हैं, and in some cases you really need a help, medical doctor help. According to the study GI, few individuals often swallow a lot of air. बहुत सी बार क्या होता है, हम बातें करते खा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है, वी आर ऑन आवर मोबाइल स्क्रीन वॉच, और आराम से वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स एंड वी आर ईटिंग. तो खाने के साथ जो एयर जा रहा है, swallowing the air also can be result in bloating.
A similar issue affects people who wear ill-fitting dentures. Bloating अगर किसी ने बहुत टाइट कपड़े भी पहने हैं, उससे भी bloating हो सकती है. Having a digestive disorder like IBS may also cause a person to feel bloated. Bloating problems in women that are related to premenstrual syndrome. Like periods की आने के पहले भी कुछ women में ये symptoms पाए जाते हैं कि 3-4 दिन पहले से they started feeling bloated. The stuffing feeling due to bloating can also be result in constipation. तो bloating and constipation you can say ना, again ये सब एक दूसरे के भाई बहन ही है. In normal language we can say. Moreover, too many gut bacteria might cause abdominal distension and gas. What a person eats could also contribute to the excessive gas production that causes bloating. Some carbohydrates, such as those in meals like beans, broccoli, cabbage, are difficult for the digestive system to break down. तो उससे भी हमको bloating हो सकता है. अगर you are eating more of roti, more of carbs अगर ज़्यादा खा रहे हैं, तब भी you can feel bloating. Now, what is normal and abnormal bloating? Normal bloating is occasionally, especially after eating a large meal, is considered as normal bloating. कि हाँ आज या like हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कभी हम भी या like traveling out और हमने हमारा fancy food और हमारा favorite food और हमने उसको खा लिया ज़्यादा, तो sometime you can feel. So that is normal. Abnormal bloating is constant or frequent bloating that is associated with pain and discomfort. जो आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, कॉन्शियसली खाने का भी ध्यान रख रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, एंड देन टू फिर भी ये ब्लोटिंग आपकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, दैट इज एबनॉर्मल ब्लोटिंग. देन यू रियली हैव टू टेक केयर एंड उसके पीछे पड़ जाना है और उसको हमको टाटा बाय बाय करना है जल्दी से. नाउ द क्वेश्चन इज, किसी को द पीपल हु आर कॉन्स्टिपेटेड, आईबीएस या ब्लोटेड फील करते हैं, वो सोचते हैं ओके अभी मेरे को ये हो रहा है तो आई शुड ड्रिंक मोर एंड मोर ऑफ वाटर. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि डज वाटर हेल्प अस डीब्लोट. सो हाउ इज इट दैट ड्रिंकिंग मोर वाटर माइट हेल्प विद ब्लोटिंग व्हेन ब्लोटिंग अकर्स आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर? बहुत सी बार हमने खाना खाया, उसके बाद हमने पानी पिया एंड देन वी फील ब्लोटेड. बहुत सी बार हमने बहुत सारा कुछ लिक्विड जूस पी लिया सिर्फ एम्प्टी स्टमक, तो भी ब्लोटेड फील करते हैं. सो डज वाटर हेल्प डीब्लोट? If the body is retaining a lot of water, drinking more water might lower of bloating. ऐसा हो सकता है. Our body have a tendency to hold on to more water while trying to counter-react the effect of dehydration. Having an electrolyte imbalance ongoing through a menstrual cycle, sometimes this hinders digestion and causes a bloated stomach. Increase water intake, जब हम water intake बढ़ाते हैं, is a way to reduce fluid retention. The science behind this is that the more water one consumes, the better the body will be able to get rid of itself of excess sodium and fluids. तो हमको bloated क्यों लगता है? Bloating is like you can say normal language में कि हमारा पेट में swelling हो गया, या अगर हमारे पैर या हाथ या फेस पे भी हमको bloated लगता है, मतलब it is a kind of swelling you can say. Swelling means what? More of sodium and more of fluid. So if you're drinking good amount of water, more amount of water, so ये इससे हम bloating से बच सकते हैं. If one wants to experiment with the different types of water to help the body get rid of bloating, consider drinking coconut water. You know, coconut water आज के टाइम का अमृत है. इससे ज्यादा बेस्ट अल्कलाइन ड्रिंक पूरी दुनिया में नहीं है. सो भगवान ने हमको इतनी अच्छी चीज दी है, एनवायरमेंट ने इतनी अच्छी चीज दी है, प्लीज ट्राई टू हैव एटलीस्ट 1 कोकोनट अ डे, वो भी एम्प्टी स्टमक. उसमें क्या होता है? स्टडी शोज दैट कोकोनट वाटर इज इवन मोर एफिशिएंट एट रिड्यूसिंग ब्लोटिंग ड्यू टू इट्स हाई पोटेशियम एंड इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, which aids in the regular maintenance of fluid levels in the body. A person may even pass more urine as a result of its diuretic effects.
So this reduce water retention in the body. अगर आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं, पानी भी अच्छा पी रहे हैं, यू विल पास मोर यूरिन, तो जो स्वेलिंग और जो ब्लोटेड आपकी बॉडी है, यूरिन पास करने से यू विल फील मोर बेटर, वाटर रिटेंशन कम होगा. ईटिंग फूड्स लाइक watermelon, tomatoes, grapefruit, and cucumber, which are high in water content, is another choice of consideration. Now we'll go to next slide. So, yeah, what can I do to get rid of bloating? You can have herbal teas, and I think every day I'm sharing 1 or 2 herbal teas with you, and I'll keep sharing in the group also. इसका screenshot मैं group में भी share करूंगी, आप screenshot भी लेके रख सकते हैं. So whenever you feel, you can keep having herbal teas. Chew your food slowly and try to chew every bite 32 times. Slowly start कीजिए, कम से कम 15 बार से तो start कीजिए. आपको ना आपके आसपास जो फैमिली या फ्रेंड्स बैठे उन पे ध्यान नहीं देना है खाने के टाइम. आपको सिर्फ अपने आप में रहना है. आपने जो बाइट लिया है अपने हाथों से, वो आपको फील करना है कि आपने क्या खाया है, उसका कैसा टेस्ट है. यस, योर ईटिंग दिस, सलाइवा मिक्स हो रहा है, हम खा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे सिस्टम से नीचे इंटेस्टाइन में जा रहा है. सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट. आपको आपकी फैमिली से बात करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वो टाइम आप दूसरा रखिए. डिनर टेबल पे सिर्फ डिनर या खाने की टेबल पे सिर्फ खाने का फोकस होना चाहिए. आपकी बॉडी में कैसे जा रहा है, दैट शुड बी योर फोकस. सिप ऑन वाटर, डोंट गल्प इन वन गो. पानी भी हमको एक ग्लास में लेना है खाने के 1 घंटे के बाद, और धीरे धीरे बैठकर सिप बाय सिप, मतलब हमको वो वाटर भी इंजॉय करना है कि ओके पानी गया, मैंने वापस से अपने मुंह में पूरा अच्छे से घुमाया, एंड धीरे धीरे इट इज गोइंग डाउन. सो एवरीथिंग आपको बहुत कॉन्शियसली आराम से ध्यान से करना, बिकॉज आज हम जो है इस बॉडी की वजह से है. तो इस जो बॉडी में जा रहा है, हमारे शरीर में हम जो डाल रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बॉडी. अगर आपने अभी फोकस किया तो आपकी बॉडी आपका ध्यान आगे तक रखेगी, राइट? सो हैव वाटरी वेजीज इन डिनर, जिसमें बहुत वाटरी है. हैव सौंफ अजवाइन पोस्ट मील्स. मैंने आपके साथ अजवाइन और सौंफ की टी शेयर करी है, उसकी रेसिपी. प्लीज ट्राई टू, या तो आप ऐसे खा भी सकते हैं पोस्ट डिनर, सौंफ या अजवाइन मिक्स करके रख दीजिए, एंड यू कैन ईट ऑल्सो. वॉक एटलीस्ट 100 स्टेप्स पोस्ट मील. यस, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने हॉल में, अपने रूम में ही टहल लीजिए. ओनली 100 स्टेप्स ही लेना है. 100 to 500 स्टेप्स आर बेटर. बैठिए मत, सोने मत चले जाइए तुरंत खाते ही. नाउ विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. What are the reasons that I feel bloated? So it's number 1, consuming too much of processed food. वो सभी को मालूम है आज के टाइम का वो सबसे ज्यादा बड़ा चीज है. लाइक हम लोग ना वो टेम्पटिंगनेस, वो देखते ही वो खाना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. कभी न कभी हमको याद आ जाता है पास्ता, पिज्जाज, केक्स, यू नो. सो वी हैव टू कंट्रोल दैट. हमको लिमिट में रखना है, बंद नहीं करना है. डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज. अगर आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. Don't get enough sleep. Sleep is the biggest medicine. Please try to have a good sound sleep. Have too much of toxicity inside you. Only think positive. हम सबको मालूम कि हमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पर देखिए ना, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं कि हम पूरे टाइम अच्छा ही अच्छा सोचेंगे. कभी नेगेटिव थॉट आ भी गया तो तुरंत से हमको स्पीड से हमारा फोकस शिफ्ट करना है कि अरे कहीं कुछ गलत हो रहा है. तुरंत शिफ्ट योर फोकस टू गुड थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, और अच्छी चीज पे फोकस शिफ्ट कर लीजिए. उसे 5 मिनट्स थोड़ा सा नेगेटिव जोन में चले जाइए, पर अगेन कम बैक सून. पुल योरसेल्फ. अपने आप को आपको खुद ही खींच के लाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प के लिए. क्योंकि अगर आप वहीं पे बैठे रहे नेगेटिव जोन में, आपकी पूरी बॉडी पे उसका रिएक्शन दिखेगा. नाउ इफेक्टिव वेज टू डी ब्लोट. अभी हमको डी ब्लोट कैसे करना है, कैसे ब्लोटिंग को हटाना है, कुछ तरीके हैं. सो यू हैव टू ड्रिंक adequate water. A human body requires enough water for various functions of the body. Bloating is a result of dehydration.
which can also cause constipation. Even though it may seem paradoxical to drink more water, our body releases the excess fluid when it receives the hydration it requires. Make sure you consume at least 8 glasses of water every day. 8 glasses is what? Approximate 2 liters. But I'll suggest 2 to 3 liters, please try to drink, especially in summers. However, water requirement varies with the body composition. Again, मैंने आपको बोला है कि किसी को कम water की जरूरत है, किसी को ज्यादा जरूरत है, according to their body composition of every individual. Next, fiber intake. हमको fiber intake पे बहुत focus करना है. Fiber is a crucial component of a healthy diet, not just for the digestive system. Moreover, it can aid in controlling cholesterol and weight also. However, some individuals do experience gas and bloating while increasing their fiber intake. ऐसा होता है क्योंकि बहुत टाइम से सालों से हमारी बॉडी यूज टू है कि सिर्फ हम रोटी और दाल ही खा रहे हैं और वेजिटेबल्स बहुत कम खा रहे हैं या फ्रूट्स बहुत कम खा रहे हैं एंड सडनली वी हैव चेंज आवर डाइट पैटर्न और तो वो हमारी बॉडी में भी अडेप्ट नहीं कर रही है तो वो स्टार्टिंग में गैस या ब्लोटिंग हो सकता है मोर ऑफ फाइबर इंटेक से. बट अगेन यू हैव टू वॉच कि कौन सा और क्या वेजिटेबल या क्या फ्रूट खाने. बहुत से लोगों को वाटरमेलन खाने से भी ब्लोटिंग फील होता है. सो यू रियली हैव टू डू फूड जर्नलिंग प्लीज. ये सारी आपने 3-4 चीजें तो स्टार्ट करी है आज रात से गाइस. प्लीज स्टार्ट फूड जर्नलिंग ऑल्सो. इट मे हेल्प be useful to remember soluble fiber containing meals. Now, including fruit, oats, beans, peas, nuts and seeds tend to cause more gas. ये सारे गैस थोड़ा ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं insoluble fiber containing foods. अब insoluble fiber containing foods क्या है? Roughage including whole grains and vegetables. Until the digestive system becomes normal. अगर आपने नया डाइट पैटर्न चालू किया है तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए. उसको भी कुछ चीज अडेप्ट करने में टाइम लगता है. The more important thing when you feel more bloated या आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो less salt intake. जो हम सबको मालूम है कि अगर bloated है तो हमको कम नमक खाना है पर फिर भी हम फोकस नहीं करते. So limiting the intake of salt in the diet is the best approach to prevent bloating. The majority of the salt we consume comes from packaged and prepared foods. Eat food in their original state to limit salt intake and painful bloating. These foods include fresh fruits and vegetables without extra sauces and basic healthy grains like oatmeal, limit, bread, canned soup, cheese and fast meal. Aajkal, yeah, fiber foods. Jayanti wants to know more about fiber foods. Okay. Now next is regular exercise. I will talk about fiber foods ke details aaram se or I will post in the group so everybody can see that, right? Now regular exercises. You have to focus more on your movement. A movement बहुत सारे फॉर्म में होता है. मैंने कल भी बोला था और आज भी रिपीट कर रही हूँ. You can do good 10,000 steps of walking, jogging, running. You can do steps climbing also. टबाटा भी कर सकते हैं आप. या कल जो टीना ने आपके साथ शेयर किया था वो वाला 10 मिनट्स का भी टैपिंग भी कर सकते हैं. इसमें बॉडी बहुत जल्दी हीट प्रोड्यूस करती है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यू थिंग व्हाट वी ऑल हैव लर्न yesterday, right? Regular exercise. Now bloating. One second. Okay, did you guys started ginger tea, which is good for overall gut health? आपको लग रहा होगा कि why I'm focusing and again like forcing or talking about ginger tea. Please, it is anti-inflammatory. It is very much useful. You know, आज ये हमारा इंडियन हर्ब है. ड्राई जिंजर को हम सोट पाउडर बोलते हैं. हम लोग इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं पर यू नो नाउ डेज मोर ऑफ यूरोपियंस, मोर ऑफ अमेरिकन्स, दे हैव स्टार्टेड फोकस मोर ऑन जिंजर. इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स है गाइस. हमको 12 ही महीने वी गेट जिंजर इन डिफरेंट फॉर्म्स, ड्राई जिंजर, फ्रेश जिंजर. प्लीज ट्राई टू consume it, and 3 to 4 grams is good to consume. I think the other day somebody asked me the question. So 3 to 4 grams
it's good to consume ginger. Okay, what if ginger tea doesn't suit one? So you have to know like क्या हो जाता है आपको ginger tea पीने से. Maybe in starting आपने इतने सालों से कभी लिया नहीं है, now your body is taking time to adapt it, so just put कम quantity, मतलब थोड़ा सा ही ginger डालिए उसमें and try कीजिए if it is suiting you or not again, right? Okay, start taking wet pack, Satya ji, please. It will take all the heat from your body. Yeah, if it is not suiting you, please try to avoid. Again, हर चीज हर किसी की बॉडी के लिए नहीं बना है, and if it is not suiting, don't force it. Okay, restrict sugar. Dietary sugars or artificial sweeteners might also result in bloating and gas. These problems are resolved by drinking water, which also relieves constipation. Some people may experience bloating due to their sugar alcohol. Bloating and gas pain can occur when air is solid during the chewing. जब हम च्यू कर रहे हैं तो उसके कारण भी ब्लोटिंग या गैस हो सकता है. तो तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते चले आ रहे हैं, नानी दादी मम्मी, कि खाते टाइम बात मत करो, खाते टाइम फोन पे बात मत करो, खाते टाइम किसी से बात मत करो, खाना मतलब खाने पे फोकस करना है. To freshen their breath instead, people can use peppermint or ginger mints. You can try again peppermint tea, ginger tea या peppermint या ginger. आप बहुत सारे दूसरे forms में भी ले सकते हो. You can do all your research. Everything is available nowadays online. Limit your consumption of alcohol. Everybody knows about this, right? थोड़ा सा धीरे धीरे, अगर आपसे एकदम से कंट्रोल नहीं हो रहा है, I understand. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम कीजिए and slowly आप आपके टारगेट तक पहुंच जाएंगे. Again, the main important thing is mindful eating. Along with aiding digestion, fibrous foods also help flush away salt, which causes bloating. These are foods like potassium rich, like banana, water rich fruits like watermelon. Papaya is rich in vital digestive enzymes that help break down protein and speed up digestion. So making a person feel less full, choosing the right food is essential to prevent and manage bloating. You have to include more of probiotics. It's good for your gut health, overall gut health. Constipation, IBS, bloating के लिए अच्छा है. Right? Now conclusion. ये सब समझने के बाद what conclusion पे हम पहुंच रहे हैं कि bloating is natural occurrence. इसमें we don't know how it is coming and how it is going, so we have to solve it. Mostly the condition is nothing to worry about. इतना कोई major और बड़ा चीज नहीं है. That's Jayanti ji, that's probiotics. But if an individual suddenly starts suffering unusual symptoms without any dietary changes, it might be necessary to see a doctor, a professional doctor. कि अचानक से आपने कुछ भी नहीं खाया है, वही लाइफस्टाइल चल रहा है and you're taking too much care, और अगर and then you're feeling bloated and too much pain, please go see your doctor. Probiotics. Jayanti ji, that's probiotics. A person may prevent bloating by including foods that are good for the gut in the diet, staying hydrated and paying attention to the health to the body. Now, what is the thing that relieves bloating fast? ऐसा क्या चीज है जिससे हम bloating फटाफट relieve कर सकते हैं? So, quick relief from bloating will require the following habits. कुछ habits है जो हम अगर हमारी lifestyle में डालें, so it will really help you. So, consume small, frequent meals. Eat slowly. बहुत धीरे धीरे chew करके हमको खाना है. Drink liquids that are at room temperature. हमको एकदम से फ्रिज का पानी भी नहीं पीना है या ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है. Normal room temperature, मटके का पानी is the best. Increase your physical activity, जिससे कहीं अगर बॉडी में गैस या ब्लोटिंग भी है तो if you're sweating तो वो वाटर बाहर निकल रहा है, सॉल्ट बाहर निकल रहा है. That is also a way to bloating को बाय बाय बोलने का भी वो एक अच्छा तरीका है. More of physical activity and sweating.
Get up immediately after eating and going for a walk also relieves bloating. आपने खाना खाया है और आप वॉक पे चले गए हैं, इट्स वेरी गुड टू वॉक इन नेचर। पर अगर आपके आसपास नेचर नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है आपकी, सो यू कैन वॉक इन योर हाउस ऑल्सो। आप घर में भी वॉक कर सकते हैं नॉर्मल। कैन वाटर फ्लश आउट ब्लोटिंग? यस, ड्रिंकिंग वाटर में असिस्ट इन मिनिमम ब्लोटिंग बाय फ्लशिंग द बॉडी ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम। बहुत सी बार ब्लोटिंग अगर आपने कॉन्शियसली आपका ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे के बाद अगर आपने आराम से बैठ के 1 से 2 ग्लास पानी पिया है, तो वो जो आपके ब्रेकफास्ट में डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, प्लस अगर जो ब्लोटिंग डेवलप हुआ या होने वाला है उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो सोडियम सब फ्लश आउट कर देगा। चांसेस है कि वो फ्लश आउट कर दे एक्स्ट्रा सोडियम। अनदर सजेशन इज टू मेक श्योर टू हाइड्रेट वेल बिफोर ईटिंग। अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो 45 मिनट्स के पहले आप सोच लीजिए, प्लान कर लीजिए, बिकॉज नाउ यू हैव टू डू फूड जर्नलिंग, यू हैव टू फिक्स योर शेड्यूल, योर टाइम, ट्राई टू डू इट कि आप खाना खाने पहले हैं तो 40 मिनट के पहले आप बैठ के 1 गिलास पानी आराम से पी ली। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन ब्लोटिंग। और आपको दिस ऑल्सो रिड्यूसेस ओवर ईटिंग। अगर आपने पानी पहले ही पी लिया 1 गिलास खाने के 40 मिनट के पहले, तो आप जो ओवर ईटिंग है वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, वेट इश्यू भी आपका सॉल्व होगा इससे। कैन वी रिलीज ब्लोटिंग एट होम? क्या हम ब्लोटिंग है तो हमको क्या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? नहीं, वी कैन वर्क दिस ऑन एट होम ऑल्सो, बहुत इजी तरीके से। सो बाय हर्बल टीज में प्रमोट बेटर डाइजेशन and reduce flatulence. Herbal teas like chamomile tea, peppermint tea, turmeric, ginger, fennel. These are really good teas for gut constipation, IBS, bloating के लिए बहुत अच्छा है. Especially chamomile is very good for bloating. We are going to talk about that. Yeah, the bloating that results from water retention may be reduced with chamomile tea. Now chamomile tea, yeah, we can see the chamomile tea. Please, you can take screenshot ले सकते हैं आप. So which healthy tea is good for bloating relief? Chamomile tea contains antioxidants that may offer health benefits, which may reduce your risk of some diseases. Chamomile tea may also help improve sleep and digestion. आपका sleep और digestion अच्छा होगा तो automatic bloating भी control रहेगा. इसके बेनिफिट्स है इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। आप इस सोने के पहले भी ले सकते हैं, आधे घंटे बिफोर, लाइक 30 मिनट के पहले। जैसे आपने सेशन खत्म किया, आपने अच्छे से लेफ्ट नेजल ब्रीदिंग किया स्लीप के लिए, आपने आराम से, फिर आपको कुछ गर्म पीना है, यू कैन आराम से टेक कैमोमाइल टी, फुट मसाज कर लिया, एंड देन यू कैन गो टू स्लीप। The ready make one chamomile which you get, we can use it. Yeah, you have to find कि हर्बल कैमोमाइल टी, उसमें ज्यादा मिक्सचर नहीं आना चाहिए। कैमोमाइल टी के कुछ ऐसे ड्राई फ्लावर टाइप्स होते हैं, यू हैव टू बाय दैट। उसकी एक्सपायरी 6 to 8 months, क्योंकि वो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होना चाहिए। मेक श्योर उसका पैकेजिंग अच्छा हो। Yeah, Satya, so in future we are trying to source a good chamomile tea from the farmers. हमारी फार्मर्स से बात चल रही है, तो हम डायरेक्ट उनसे ही सोर्स करने वाले हैं। We'll share a link in future. Surely we are going to provide you chamomile tea, peppermint tea, all the herbal teas. Yeah, yeah. It controls and benefit of blood sugar also, improves your heart health also. So please guys, take a screenshot of chamomile tea, and whenever jahan bhi mile, please source the chamomile tea and find it. It's very good for sleep also, digestion also, bloating also. We can go to next slide now. Now, again, coming back to which essential oils are good. So again, like ginger and fennel, which is very good. Ginger is like, mere liye to jadi booty hai ginger. Peppermint, Roman chamomile. So you can take either chamomile tea या आप chamomile oil के रूप में भी use कर सकते हैं. Externally, you can breathe nicely. Aroma ले सकते हैं उसका. Thyme is also a very good herb. उसका essential oil is very good. So this all things together, इसका एक blend जो है, mixture of blend mixed with coconut oil really helps you. Again, you have to take 3 to 4 drops in your hand. अच्छे से आपको जहां ब्लोटेड फील कर रहे हैं, आपको ब्लोटिंग कहाँ लग रही, सो अफेक्टेड एरिया में आपको अच्छे से मसाज करना है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज
5 to 10 मिनट्स अच्छे से मसाज कीजिए, आपका ऑयल अंदर चला जाएगा, बॉडी पूरी सोक कर लेगी एंड यस यू आर गुड टू गो. So our next are our detox water. So coriander cumin water. अभी again आप ये रात को भी सोक कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट आप अर्ली मॉर्निंग उठते ही एक ग्लास में इसको सोक कर दीजिए. 1 tablespoon of coriander seeds and 1 tablespoon of cumin seeds. This is also a very good water. Overnight हमने लिखा है, आप overnight भी सोक कर सकते हैं, पर सुबह उठ के भी सोक कर सकते हैं. You can drink whole day. आप पूरे दिन इसको थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं. Please take a screenshot of this and know all the benefits of this. This is a very good detox water. Now we can go to next slide, next detox water. And these all slides I'll share in the group also. Now, the last thing is cucumber amla curry leaves. So cucumber हमको morning जो detox juice whoever started, so उनके लिए एक ऑप्शन हो रहे. मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कुकुम्बर लिया, एक खीरा लिया आपने, एक आंवला लिया और कड़ी पत्ता करी लीव्स लिया, उन सबको अच्छे से पीस लिया. मैं प्रेफर करूंगी कि आप ऐसे ही बिना स्ट्रेन के ही पिए, बट किसी को पसंद नहीं है तो स्ट्रेन इट एंड ड्रिंक इट. Try to avoid putting salt in this, क्योंकि salt बहुत सारे आपके nutrients destroy कर देता है. Naturally पीजिए, enjoy this. Okay, yeah. So thank you. Yeah, now this is all Rena Essentials oils. Peppermint oil, if you can't source it, we have at Rena Essentials peppermint, rosemary, eucalyptus, clove, frankincense. Oil pulling oil है हमारे पास, सारा blend बना हुआ है, lemon है, turmeric है, virgin coconut oil we have, almond oil we have, castor oil भी है. So we have all the types of carrier oils and essential oils. Whatever you need, you can just message or DM us or call us and ask. बहुत सारे inquiries आ रही है. Many people have ordered also. बहुत सारे लोगों ने order किया है. Thank you guys for the amazing response. Okay, so now over to Tina. Tina, are you there? Yes, Reena, I'm here. Yeah. I'll turn on my camera. Just give me a minute. Yeah. So now let's see आज टीना हमारे लिए क्या लेकर आई है. Hey guys. I'll just close the door. Too much of noise. Hey guys. You might hear the background noise. I'm at work, so yeah, you'll be hearing a little bit of noise. And I hope you're enjoying my session, tapping and the previous asanas. So today we'll be doing 4 new asanas, which is like happy baby pose and pigeon pose, bridge pose, and breathing, like abdominal breathing. So if you're ready, let's start. Let's sit straight. Sit straight, keep your, for females, right hand on the belly button, and for male, left hand on the belly button. Other hands goes on the top of each other. And we'll be doing 5 deep breathing, inhaling, expanding your belly, exhaling, pulling it in. Inhale, expand your belly. Exhale, pull it in. Inhale, expand. Exhale, in. Expand. In, expand, in. One last one, inhale, expand, and exhale, pull it in. So apart from abdominal breathing, we'll be doing lung breathing. So this time you are focusing on area behind your ribs where you have your lungs. So we'll be breathing in our lungs. So the belly will not be moving. So just look at me, inhale, expand, and hold it for a few seconds. And exhale. Slow inhale and slow exhale. Your belly is not moving, just breathing in your lungs. So please do with me. We'll be doing 3 breathing in our lungs and we'll be holding it for just 2 seconds. Inhale.
exhale. In, out, in, exhale slowly, relax, just few normal breathing. So for today's pose, I'll just show you. First is happy baby pose. So please lie down on your mat, on your back. This is a very good pose for releasing bloating and get rid of all the gases in your body. So you will lie down and bend your knees and try to hold your ankle. If you can't hold your ankle, just hold your shin and try to pull it down. As you have seen the baby holding their legs and playing it like this, rocking and rolling right and left, the same way you have to do it. I'll just show you from the other side. You'll be bending your legs and then holding your big toes and holding your arch of your foot and pulling it down and then rolling it right and left, right and left. This is very good for your back massage, very good for relieving the gas from the body. And slowly release and bring it down. If you have lower back pain, it gives relief to that also, and it gets rid of the gas. And again, lift your leg up and hold your arch of your foot and pull it down. As much as you can pull it down, hold it and roll right and left. Go right, left, right and left. Slowly bring it down and relax. And just take few breaths. And next pose is bridge pose. So bring your hand down. Your feet closer to your hips. I think we have done this pose before. I'm not very sure though. Keep your hands closer to your heels. And you have to lift your hip up. Inhale, lift up and hold. Hold it for 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale, come down. Inhale and lift up. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale down. Now please turn around and lie down on your back. We'll be doing cat and cow. Come on all your fours. And along with cat and cow, we'll be doing twisting. So exhale, hunch your back and chin down. Inhale, arch your back and look up. Exhale, hunch and down. Inhale, arch and up. One more time, exhale, hunch and down. Inhale, arch and up. Last one, exhale, hunch and down. Inhale, arch and up. Now bring your bring your left hand up, take it up, and then slowly we'll thread the needle. So take your hand inside like this, shoulder goes down and look towards your right. I'll show you from the other side. So your hands are down, you're just going it like that and resting your side of your face on the mat. Inhale, come back up, come in tabletop position. And now take your right hand up and then thread the needle and go down and relax here. Come back up, we'll do it from the left side, left hand up. And exhale, bring it down. Last one, come back up and right up and down. Come back up and sit down in Vajrasana. So next pose is Ustrasana, which is also called camel pose. It is very good for your acidity, acid reflux. It is basically a back bending pose.
जितने भी बैक बेंडिंग पोज होते हैं हमारे एसिडिटी के लिए काफी अच्छे होते हैं, ब्लोटिंग के लिए भी अच्छे होते हैं. So if you're a beginner, you have to keep your hands on your waist. You have to pull your elbows back, push your hips forward, and then go back and hold for 5, 4, 3, 2, and 1. Come back up. If you are practicing yoga already, you have to do it. Take your right hand on your heel, left hand on your heel, push your hips forward and go back and hold here. 5, 4, 3, 2, and 1. Come back up. You can practice all these asanas at least three times and hold it for 5 seconds initially, and then gradually you can increase the duration of your asanas. Somebody is asking if they have a knee issue, then what can they do? They can put a cushion underneath and then they do it like that. Give support to your knees so that it will not pain. And if it is like too much of pressure on knees, you can do just crisscross, and you can do like this. Hold it and try to arch. You can do like interlock your finger, hunch your back, and then take your hands on the back and then try to arch and go back as much as you can. It won't be as effective as the previous one, but you can try this way. And the other solution is put a cushion underneath your knees, and then you can do that. Okay, so last one is pigeon. I'm going to show you. I don't know how much or how many of you are doing it with me. So this pigeon pose is also very good for bloating, indigestion, and gas. So I'll just show you. You have to bend your knee and lie down on your back. You have to take your right leg, put your ankle on top of your left thigh, and your hand goes inside this triangle, and then the other hand goes, and you have to hold your shin and interlock it like this and pull it towards you. जितना आप घुटने को अपनी छाती के पास ला सकते हैं वहां तक लेकर आए और उसको पुल करें. You'll get a very good stretch in the back of your thigh. This is a very good pose for gas and bloating, and this is a very, very, very good pose for sciatica. If you have back pain, sciatic pain, it gives a very good stretch to your sciatic nerve. The same way, take your ankle, keep it on top of your right thigh, and then take your hands inside the triangle and take it from out, interlock your finger and pull it towards you. Hold it for 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. Bend your knees and turn towards your left. Take a support and come and sit down. Please come and sit down on your mat. Relax completely. Take few breaths. Just relax your face. Inhale. And exhale. In, out. And please join your hands. And we'll be doing again one more time the healing process. So just rub your palm. If you're doing it with me, just rub it and make it warm. Rub your wrist as if you're washing your hands. And then rub your wrist, back of your palm, then your wrist, and take it up. 1, 2, 3, 4, and 5. And hold your imaginary ball, close your eyes. And hold it. Feel the vibration between your palms. Feel the in your fingers. Hold. Take your hands away and bring it closer. When you take it away, when you bring it closer, you can feel your magnetic field increasing, and you'll feel the sensation of repelling as if the magnet repels each other. One more time, take it away and bring it closer. Now make a V and take it on your face. 1, 2, 3, 4, and 5, and keep it on your forehead. And just do it like this. 1, 2, 3, 4, and 5. The same way you have to do it back. 1, 2, 3,
4 and 5. You're putting all your energy from your palms to your face and to your head. Now, please join your hands and close your eyes. We'll end our session with 1 Om and 3 Shanti. Take a deep breath in. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palm. Keep it on your face. Massage your face and gently take your palms in front of your face. Open your eyes, look at your palm. Join your hands. Thank you, Almighty, for all the wonderful things you have in your life. Thank you so much. Thank you for sharing your time with me. Have a blessed and wonderful rest of your evening. Thank you, Bye, guys. Tina. Thank you for such a wonderful session. Thank you. Thank you, Reena. Tina. Thank you, Anshul. Thank you, Tina, for taking out time out of your work and such a beautiful session. Thank you so much. Thank you, guys. Bye-bye. Yeah, bye. Over to you, Angelina. Yeah, okay. So we have, seen many different things, and now I come to my thing, and let me just put on the slide so that I can share the details. Okay. So हमने आज ब्लोटिंग के बारे में समझा और ब्लोटिंग के बारे में ही डिटेल में डेप्थ में बात करी, समझा कि क्या हम लोग अलग अलग चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो टू स्टार्ट विद पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें बहुत सारे मेल्स आए, बहुत सारे जन को जो 7 days का प्लान चाहिए उसके बारे में पहले मैं बात करूंगी, फिर आई गो टुवर्ड्स व्हाट आई वांट टू से। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास 3 ऑप्शंस है। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 499 का, जहाँ पे हम आपको एक बेसिक डाइट प्लान दे रहे हैं और आप यूज कर सकते हो फॉर अ वीक। ओके। सेकेंड वाला जो है हम प्रिफर कर रहे हैं सेकेंड वाला, क्योंकि वी वांट टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन। आपका खान पीन क्या है, आपका क्या चीज है, आपका क्या आपको सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सो सेकेंड प्लान इज फॉर 999 वेयर वी अंडरस्टैंड यू एंड एज पर योर स्पेसिफिक्स हम आपको कस्टमाइज करके आपके गट को हेल्दी करने के लिए वो हम आपको डिटेल दे रहे हैं, जो कि सेकेंड वाला है। ओके। एंड थर्ड वाला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज फॉर 1999, मगर उसमें हम आपको होलिस्टिकली आपको समझ रहे हैं, मतलब इट विल बी कस्टमाइज्ड एज पर योर स्पेसिफिक, बट एट द सेम टाइम हमारा एक वीडियो कॉल होगा, हम आपको डिटेल में समझेंगे। आप कई बार क्या होता है, हमारी हेल्थ जो है ना, गट, कई बार हमारे इमोशनली हम चार्ज होते हैं और हमारे इमोशनली हम नहीं समझते हमें इमोशंस कैसे चैनलाइज करना है, उसके वजह से हमारा गट कई बार, जैसे आपने कल के टॉपिक में देखा कि IBS इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ रिस्पॉन्स। आपको एकदम से फियर महसूस होता है और उसके वजह से आपका अचानक से पेट खराब हो जाता है। सो विल अंडरस्टैंड यू मोर इन डेप्थ इन डिटेल कि क्या इमोशनल या मेंटली, क्या आप अच्छा खाने के बावजूद भी, खाने के बाद में भी वापस से आप वही पैटर्न पे आ रहे हो, वही पैटर्न में आ रहे हो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी क्या ऊर्जा देनी है, क्या डायरेक्शन में लेके जाना है और कैसे आपको राइट थिंकिंग करनी है अपने बॉडी के लिए, अपने गुड हेल्थ के लिए। तो दिस इज अ होलिस्टिक पैकेज वेयर वी अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ एंड वी गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस इन वन। ओके। And so this is the 3 options that we have. And the fourth which we are coming up in the future is this, जहाँ पे हम डाइट प्लान भी दे रहे हैं आपको, पूरा आपके स्पेसिफिक के, आपके बॉडी टाइप, आपके डिटेल के लिए आपको प्लान मिलेगा। कंसल्टिंग कॉल होगा जहाँ हम कॉल पे आपको अंडरस्टैंड करेंगे, इमोशनल मेंटल जो जिससे मैंने बताया वो सब होगा। एंड 5 days हम आपको राजयोग सिखाएंगे। राजयोग इज बेसिकली जहाँ पे आप अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट को इंक्रीज करते हो। हमारे बॉडी में बहुत सारी नाड़ीज है, बहुत सारे नर्व्स है, तो जब आप वो स्पेसिफिक उसमें मुद्रास के साथ में स्पेसिफिक टाइप की ब्रीदिंग होती है, और जब आप वो पोज में बैठ के आप जब वो ब्रीदिंग करते हो तो आपकी ईच एंड एवरी नर्व्स में मतलब फिल्ड विद ऑक्सीजन होता है, मतलब मोमेंटम में ऑक्सीजन फिल होता है।
तो जैसे आपको सबको पता है हमारी बॉडी को चलने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। बाकी चीजें भी है मगर मेजॉरिटिवली हमारे सेल्स में वो है। तो अगर ऐसा कोई टेक्निक कोई सिखा दे, कोई एंशिएंट विजडम को सिखा दे कि जहाँ पे आप वो ऑक्सीजन कंटेंट अपने बॉडी में आप फिल करो और उसकी वजह से ही आपकी पूरी बॉडी अच्छे से चल पाए। सो दिस इज अ वेरी एंशिएंट टेक्निक विच लकीली माय गुरु टॉट मी। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट कम अप विद इट एंड टीच यू, बिकॉज ऑफ 5 मिनट्स में आप सीख जाओगे, मगर आपको 1 मंथ तक मॉनिटर करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको डाइट दी है तो आपको आपके स्पेसिफिक पे हम देंगे, कुछ जम रहा है कुछ नहीं जम रहा है तो उसमें क्या मॉडिफाई करना है। So 1 month in WhatsApp will be hand holding you to every detail to whatever questions you have. And देखो, गट एक ऐसी चीज है, अगर आपने अपना गट फिक्स कर लिया ना तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, पूरी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही आपने सॉल्व कर दी। क्योंकि आप खाना खाते हो और वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट का हो रहा है आपके पेट में। अगर आप नेचुरली नेचर के साथ में अलाइन होके उसको खान पीन और ये बाकी पूरा मतलब एक्यूप्रेशर हो गया, योगा हो गया, ब्रीदिंग हो गई, वो सब से पानी कैसे पीना है वो सब के साथ में अगर आप करोगे एरोमा थेरेपी एंटी, तो ऑटोमेटिकली आप उसको ऑटोमेटिकली नेचुरली हील कर सकते हो, आपको किसी भी जरूरत नहीं है। तो दैट इज वाई ये हमारे 4 ऑप्शंस है, विचएवर अगर आप 4 वाले में 4th वाले में चाहते हो तो जब हमारा प्रोग्राम आएगा वी विल शेयर इन द ग्रुप एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट। ओके, तो एंटायरली योर चॉइस जो सा आपको करना है। ओके, तो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है सनलाइट, है ना। हमारे लाइफ में सनलाइट कितना मेजर काम करता है उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहती हूँ। ओके, तो सनलाइट एक बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एक नेक्स्ट लेवल का इम्पोर्टेंस है। तो हम समय के साथ में क्या हुआ कि हम लोग थोड़े मतलब सनलाइट से हम ना समय सन पे नहीं, मतलब सुबह उठ के हम सन पे समय ही नहीं देते। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपनी चीजों में लग जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, नहाते होते, ब्रेकफास्ट करते, ऑफिस चले जाते, ऑफिस का काम करते, घर पे आते हैं, या हम अपने घर का ही काम करते, जैसे कोई हाउस वाइफ है तो अपने घर का ही काम पे लग जाते हैं। मगर हम सनलाइट से हमने कहीं ना कहीं अपना नाता कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। और ये वर्ल्ड वाइड फैक्ट है, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये फैक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस जो हमारे बॉडी में होती है, जब आप सनलाइट आप अपने बॉडी में नहीं लेते हो तो वो कहीं ना कहीं वो बॉल रोलिंग होती है और उसकी वजह से वन थिंग लीडिंग टू अनदर होने लगता है। ना हम लोग सब लोग रोज सुबह नहीं उठते, राइट, ना ही हम सन में समय देते। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि सन से हमें क्या क्या चीजें मिल रही है। तो सन से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारे आईज, जब हम सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम एक वो कनेक्शन हम बना रहे होते हैं जहाँ पे हमारे आईज की ताकत और अच्छी होती है, हमारी स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, हार्ट हेल्थ बढ़ता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, और कैंसर रिस्क को कम करता है, हाइट आपकी इंक्रीज होती है, मल्टीपल स्टेरॉइड्स को लो करता है, डिप्रेशन को डू अवे करता है। तो जब ही जैसे ही सन जब आता है तो बेसिकली आप सन के टाइम पे आप जब उठते हो और सुबह उठ के, तो वो वाली एनर्जी जो है वो आपके बॉडी में कई सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो हार्मोन्स जो है वो 1 बाय 1 एक दूसरे से लिंक्ड है और उसके वजह से हमारी पूरी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। ओके, तो ये एक वो डिपिक्शन है कि मेलाटोनिन जब रिलीज होता है तो आपके डीएनए को वो हेल्प करता है, अबंडेंट एनर्जी आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपके बॉडी में डिजीज नहीं होता है। ओके, तो जैसे हमने समझा कि सनलाइट, अभी आप सोचो अगर सन ने निकलना बंद कर दिया, किसी दिन जिसने डिसाइड किया कि मुझे बाहर ही नहीं आना, ओके, मतलब महीने बाद वो नहीं आता, तो नेचर में क्या होगा? What will happen to nature? What will happen to plants? Can plants survive without sun coming out? क्या हमारा खाना जो हम खाना खा रहे हैं वो तो सनलाइट से पक रहा है, राइट?
तो क्या हमें वो अन्न भी मिलेगा? हमें अन्न ही नहीं मिलेगा, वो अन्न ही तो हम खा रहे हैं करके। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन सन एंड मून की एनर्जी, मगर कहीं ना कहीं हमने सन से नाता तोड़ लिया है और हमें उसे कनेक्ट होना है। ओके, तो नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ विटामिन डी अगर आप देखो तो आप सन लेते हो, आपके स्किन में आता है, स्किन से होते हुए आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके लिवर, आपकी किडनी, हर चीज में वो एक तरह से सप्लीमेंट दे रहा है, चार्ज कर रहा है। तो सन इज द नेचुरल चार्जर, जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, वैसे ही सन हमें हमारी बॉडी को चार्ज करता है। तो स्पेशली हमारी ये क्लास में कई सारे जन जो ओम से मेरे साथ जुड़े थे, वो काफी सारे जन है। तो जब हम सन को देखते हुए हम ऐसे अलाइनमेंट में हम बैठते हैं जहाँ पे सन की ऊर्जा हमारे बॉडी पे आ रही, अर्ली मॉर्निंग का सन, और आपके थर्ड आई में आ रहा है, और आप जब ओम चैंट कर रहे हो तो वो विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर है। इमेजिन द काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ आपका एनर्जी लेवल, आपके पूरे बॉडी का वेलबींग, आपके फुल बॉडी का रिचार्ज लेवल एक अलग ही लेवल का है। तो दैट इज वाई सिटिंग इन दी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनशाइन की डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है? हम ब्रेन में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, एडीएचडी, ऑटिज्म, कॉग्निटिव इम्पेयरिज्म, ये सब जो है ब्रेन में, ये सारी चीजें सनशाइन अगर कम होगा तो ये सब आप एक्सपीरियंस करते हो। मसल्स में आपके न्यूरो मसल्स जो है वो पेन होंगे, वीकनेस होगी, उसमें इंजरी होगी। बोन जो है वो कमजोर होंगे और उसमें मतलब उतनी ताकत नहीं होगी जितना। तो इसलिए अगर आप देखोगे कभी भी एक नॉर्मल आज के तारीख में आप अगर मेडिकली अपने आप को कभी पूरा पैरामीटर्स चेक करते होगे, जनरली हम सबका विटामिन डी कम आता है, B12 कम आता है, हम सबका आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने सन से ही नाता तोड़ लिया ना। हम सन में जो नेचुरल चीज है, जिसको हमें केवल खाली 10 to 15 मिनट्स हमें समय देना है, हम उस वही समय नहीं दे रहे। मतलब वो नेचुरल चीज है, फ्री है, ओके, उसमें कोई चार्ज भी नहीं है, मगर हम फ्री की चीज नहीं करते। हम बिलीव करते कि नहीं हमें मेडिसिन खाना है, हमें ये खाना है। तो देखो जब चीजें बिगड़ जाएगी तब तो हमें खाना ही है, तब तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं। मगर अगर आप नेचुरली ठीक कर सकते हो तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो सर्कुलेटरी में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपके बाकी डिजीजेस हो गए, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हो गए, रेस्पिरेटरी में जैसे कोल्ड एंड कफ होने लगता है, या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो जब आप सन में आप रह रहे हो तो आपके पास उतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी आ रही है कि कैसी भी डिजीज हो रही, कैसा भी वायरस है, आप उससे लड़ने की आपकी बॉडी में क्षमता आ जाती है, उतनी आप में ताकत आ जाती है। ओके, तो बेसिकली विटामिन डी ये वर्ल्ड वाइड ये एक सत्य है कि सबसे ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही डिजीजेस होती है। ओके, तो लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो कार्डियोवेस्कुलर, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, लो रेस्पिरेटरी डिमेंशिया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे आपने देखा डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, वो उधर ही आपको एनर्जी कम है। मतलब बेसिकली समझो ये कि आपको फ्री फ्लोइंग है, फ्री कॉस्मिक एनर्जी है, फ्री सन एनर्जी है, मगर हम उससे नाता नहीं, कनेक्शन हम नहीं कर रहे। मतलब इट्स लाइक आप यू आर लाइक दिस मोबाइल। ओके, मोबाइल चले जा रहा है, चले जा रहा है, अब उसको रोज चार्ज ही नहीं कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होएगी होएगी। So that is what exactly is happening in our body. Okay, so what is the best time to take sunlight? Early morning is the best time. आप please आप क्या कर सकते हो? Okay, so I'm just putting the previous slide because Jayanti is saying previous slide, तो ये previous slide है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। नाउ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप 5 बजे नहीं उठ सकते हो। ओके, 6 बजे उठो, 6 बजे भी नहीं उठ सक रहे हो, 6:30 उठो, 6:30 भी नहीं उठ पा रहे हो, 7 तो उठ, हर इंसान 7 तक तो उठ ही जाता है। ओके,
तो अगर आप फिर भी अर्ली राइजर नहीं हो, ओके, तो नो वरीज, आपको फिर भी क्या करना है, आपको ट्राई करना है। 9 o'clock है तो आप ट्राई करो 8:45 उठो, फिर 8:45 से ट्राई करो 8:30 करो, 8:30 से मतलब थोड़ा थोड़ा एवरीडे थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। क्योंकि एकदम से अगर आप सोचोगे ना कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सुबह 5 बजे ही उठना है, आप नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीडे थोड़ा थोड़ा मोमेंटम में आप उठने की कोशिश करो। एंड आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सुबह उठना है और आपको वो टाइम मेडिटेशन करना है या सन के सामने बैठ के ओमकार करना है, या आपको खाली सन की एनर्जी, पूरी सन की ऊर्जा अपने बॉडी के अंदर फिल करनी है, you will feel a different energy in your body। ये मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि जिसको भी मैंने सिखाया है अभी तक, they have felt। एंड स्पेशली कई सारे जन ओम के हैं, तो अगर आप में से कोई प्लीज अनम्यूट करके बताना चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है जब आप सन के सामने बैठ के आप ओमकार करते हो, तो आपको वो महसूस हुई है, वो सन की एनर्जी, वो एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग ऊर्जा, एक बिल्कुल वाइब्रेंट। तो कोई भी बता सकता है, अश्विनी जी या कोई भी, एनीबडी हु इज देयर जो, I can, yes, I can tell. And Shrikant here. या टेल मी। Yes, yes. Really, that is an awesome thing to experience. In fact, I would recommend all the participants to stand in front of the sun by 6:30. That is the right time. The sun rays fall on us. Just stand in front of the sun, close your eyes, chant Om minimum 7 times, and feel the light passing through the whole body and all around you. Not only your body, all around you. Yeah, all Yes, around. yes, yes. That is the vibrant light keeps you energetic all through the day. That needs to be experienced than told. Yeah, thank you so much, Shrikant ji. Thank you. Thank you so much. So yes, I do recommend everybody try it once। एक बार ट्राई करो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ रोज रोज करो, एक बार आप करोगे ना, आप यू विल गेट एडिक्टेड। मतलब आई एम टेलिंग यू, आपका मोबाइल जब डेड होने लगता है, बिल्कुल जीरो होता है, तो आप उसको चार्जर लगाते हो, वो चार्ज होता है, राइट? So just stand below the sun, 6:30 in the morning, take that light, feel that entire sun energy is coming in your body, feel as if you have become that sun, and start radiating that sun ka energy all around you, everything. Now just make an imaginary circle around your body as if you're protected inside that. So that's like a protection coverage. Now go and do anything in this entire day. You will be like a live wire. मतलब constant energy आपका, जैसे अभी मैं रात को इतने जोश से बोल रही हूँ, तो आप सुबह से लेके रात तक, even 3 o'clock if somebody wakes you, you will be in that जोश, मतलब आप वैसी vibrant energy होगी आपकी। So please try it, please try it, please try that. It's a magic thing that starts happening in your body. Okay, तो प्लीज डू इट एंड बाद में आप मेरा मुझे फीडबैक देना कैसा लगा आपको। सो नाउ गोइंग टू द अनदर स्लाइड। ओके, तो हम जब रात को सोते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली रिपेयर होता है। इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, आप उसको कमांड नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग एनी कमांड और यू आर नॉट प्रेसिंग एनी बटन इन योर बॉडी, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी डिजाइन ही ऐसी हुई है कि वो ऑटोमेटिकली रात को जब आप सोते हो तो वो रिपेयर होता ही होता है। हर एक सेल को वो रिपेयर होता है। जो सेल काम नहीं कर रहा होता है वो उसको निकालता है, फेंक देता है, वो उसको रिपेयर करता है, और उसको जो काम है वैसे हमारी बॉडी चलती जाती है। तो इमेजिन रेड ब्लड सेल्स जो है वो हर 120 डेज में चेंज हो रहा है। तो नाउ अभी आप खुद लॉजिक लगाओ, आपके जो गट में जो सिचुएशन है हमारी, जो फॉर एग्जांपल वी आर फेसिंग सम ट्रबल राइट नाउ, कि चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है या IBS है या कुछ भी है, जब हमारे बॉडी की सेल्स ही चेंज हो रहे हैं मगर वो क्यों ठीक नहीं हो रहे, क्यों वो सेम स्टेट पे रह रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन? तो द रीजन इज सिंपली दिस,
कि सेल न्यू चेंज हो गया, बॉडी नहीं हो रही है हमारी, मगर हमारी जो थिंकिंग की हमारी ऊर्जा है या हमारे इमोशन से हम जो क्रिएट करके हमारे जो इमोशंस है वो हमारा सोचने का ढंग सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। जब वो चेंज नहीं हो रहा तो द एनर्जी दैट यू पुटिंग इनसाइड इट इज गोइंग टू बी द सेम, वो चेंज ही नहीं होगा अनटिल आप वो चक्रव्यूह को तोड़ोगे और नई चीज करोगे। ओके, नाउ हाउ डू यू डू दैट? ओके, वन इज एज अ सेड कि जो 1 मंथ का हैंड होल्डिंग हम जब करेंगे तो उसमें हम राजयोग सिखाएंगे, जहाँ पे यू विल पुल इन मोर ऑक्सीजन, द मोर ऑक्सीजन मोर हेल्दी द बॉडी इज, दैट इज वन। ओके, नंबर 2 इज सन, जो कि फ्री अनलिमिटेड है, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली उससे कर सकते हो। ओके, 3 इज जब आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा टू अ राइट डायरेक्शन, मतलब आपको आपका सोच का ढंग ऐसे करना है कि वो आगे बढ़े, मोमेंटम पे जाए, ना कि आप उसको चिंता में अटकाओ। जब आप चिंता में अटका रहे हो यू आर ब्लॉकिंग योर एनर्जी, वो इट इज लाइक अ डेड एंड, मतलब ट्रेन गया डेड एंड था, वापस आया डेड एंड था, वापस आया डेड एंड आया। तो जब तक आप उसको नई चीज नहीं डालोगे, इट्स लाइक आपके पास कार है और कार से आप बॉम्बे से पूना आना चाह रहे हो, और मगर आपने कार में पेट्रोल कैसे डाली, गंदे कचरे वाली डाली, तो वो कैसे चलेगी, चलती चलती रुकेगी फिर चलेगी, राइट? तो हमारी जो थिंकिंग की, हमारी थॉट की और हमारी इमोशन की एनर्जी है, दैट हैज टू बी बैलेंस्ड, और जब वो बैलेंस्ड आप करोगे तो ही वो आगे चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल चलो आपको ये 1 मंथ का भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मेरे को खाली फ्री में मेरे को ऑप्शन चाहिए, तो आप ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग इन फ्रंट ऑफ द सन इज अ मोस्ट free remedy, most magical remedy you can ever do in your life. एंड आप अपनी बॉडी में देखना इतने चेंजेस आएंगे, इतने सारे, एक अलग वाइब्रेशन, आपको एक अलग ही वाइब्रेशन फील होगा। तो जो ये 21 डेज का ओम चैंटिंग मेडिटेशन जो मैंने कराया था, उसमें इतने रिस्पॉन्सेज आए, इतने लोगों ने कहाँ से फोन किया, उन्होंने लगा इतना फीडबैक था कि मुझे इतना एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे इतना डिफरेंट लग रहा है, आई एम फीलिंग हेल्दी, मेरे बॉडी में पेन था, सर्वाइकल था, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मगर नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज थे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे फ्री इलाज अगर आपको करना है, सन के सामने बैठ जाना है, अपने एक पानी का बॉटल भी प्लीज रखिएगा, क्योंकि वो पानी के बॉटल को भी आप चार्ज करो और आप वो उसको ओम चैंटिंग करते रहो, और ओम चैंटिंग के बाद में जब आपको प्यास लगे आप वो चार्ज पानी पियो। सेम टाइम जब फुल मून होता है तो फुल मून में भी पानी को आप चार्ज करो और वो पानी आप पियो, तो that will balance your Ida and Pingla, your sun and moon energy in your body. Okay, so going forward to the next slide is basically हम आज मैं आपको बात करूंगी प्राणायाम पे। okay, हमने योगा देख लिया, हमने मेडिटेशन देख लिया, हमने बहुत सारी चीजें देख ली। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, प्राणायाम क्यों करना चाहिए? ओके, प्राणायाम जो है आपके ओवरऑल हेल्थ, आपकी एनर्जी इंक्रीज करता है, आपके ब्लड फ्लो को बहुत स्मूथली फ्लो कराता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपकी बॉडी को एनहेंस करता है, आपको स्ट्रेस से रिलीज कराता है, तो इट इज एन ओवरऑल इम्पैक्ट। ओके, नाउ अनुलोम विलोम करना क्यों है? क्योंकि हम सबके अंदर एक राइट साइड हमारी सन की एनर्जी होती है और लेफ्ट वाली एनर्जी हमारी मून की एनर्जी होती है। ओके, तो कई बार क्या होता है, दोनों हमारे जो नॉस्ट्रल्स है वो बैलेंस नहीं होते। ओके, मतलब कहने का मतलब है हर 1 घंटे के बाद आप एक नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे होते हो, फिर 58 मिनट्स के बाद दूसरे नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हो, और बीच में आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है। ओके, सो ईडा एंड पिंगला, ईडा इज मून एनर्जी, पिंगला इज द सन एनर्जी। ओके, now Satya is asking how many times you chant Om. You can start by 7, 11 times, 21 times, 108 times, depends. See your body, understand your body, and then do. Okay, so Satya, if you do, you can contact me. I'll share you the recording, सब YouTube में है और आप उसमें देख के first day से start कर सकते हो। Okay, okay, so now coming back to the pranayam.
प्राणायाम में बेसिकली अनुलोम विलोम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार कोई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो जब वो इमोशन होते हैं मतलब कि क्या, उनकी मून एनर्जी उनके बॉडी में ज्यादा चल रही, जब वो कोई ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड और बिल्कुल गुस्से वाले और वैसे होते हैं, तो दैट मीन्स उनकी सन एनर्जी उनके बॉडी में ज्यादा चल रही। तो ये दोनों नॉस्ट्रल्स को आपको बैलेंस करना है। ओके, तो आपको कैसे करना है, तो आज मैं आपको खाली अनुलोम विलोम बताऊंगी, कल मैं आपको दूसरा बताऊंगी। ओके, सो आई वांट यू टू अपने आप को आपको एनालाइज करना है। अभी कैसे एनालाइज करोगे, आपको देखना है कौन सा नॉस्ट्रल आपका ज्यादा एक्टिव है। तो हमारे हम सबके बॉडी में एक नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू अदर। ओके, तो एक हाथ में हमारा चिन्ह मुद्रा, हमारा जो ध्यान मुद्रा है वो लगाओगे, तो आपके मतलब लेफ्ट में आपको ये करना है, राइट में आपको विष्णु मुद्रा करना है। ओके, और आपको क्या करना है, ये अंगूठा जो है और अपने लेफ्ट में आपको इनहेल करना है, एक्सेल करना है। ऐसे हम 3 बार करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कौन सा हमारा नॉस्ट्रल ज्यादा चल रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट, और उसके बाद में आप चैट में लिख के मेरे को बताना लेफ्ट चल रहा है या राइट ज्यादा इजी चल रहा है। वो हम बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तभी बोलना। ओके, तो हमने विष्णु मुद्रा किया, हमने नोज पे मैंने अंगूठा रखा, और मैं अभी लेफ्ट से इनहेल करूंगी और लेफ्ट से ही एक्सेल करूंगी 3 बार। ओके, ओके, अभी हमारा लेफ्ट हो गया, अभी हम राइट वाला ट्राई करेंगे। ओके, अभी मैंने इसको क्लोज किया, राइट से ही लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। ओके, अभी आपको मुझे चैट में लिख के बताना है कौन से वाले नॉस्ट्रल से आप ज्यादा इजीली ले पाए, कौन सा वाला नॉस्ट्रल आपके लिए बहुत इजीली आप उससे ज्यादा लेफ्ट। ओके, और कोई लिख सकता है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। ओके, राइट। ओके, और कोई। ओके, तो जैसे अभी हमने देखा कि एक वाला हमारी नाड़ी ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब हम ज्यादातर हमारा जो श्वास हम ले रहे हैं, जिसका राइट आया मतलब आपका ज्यादा राइट चलता है, जिसका लेफ्ट है मतलब उनका लेफ्ट ज्यादा चलता है। ओके, ना अभी हमें अनुलोम विलोम करना कैसे। ओके, तो हम सेम ये ध्यान मुद्रा होगा, लेफ्ट वाला हाथ, राइट वाला हाथ जो है हम उसको विष्णु मुद्रा बनाएंगे। ओके, और ये वाली को हम अपनी अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। ओके, उसका करने का बेनिफिट जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया, बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करता है वो। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपना विष्णु मुद्रा बनाते हुए हम लोग लेफ्ट से लेंगे, ओके, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर ओके, फिर लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। विल डू दैट। ओके, सो वी आर जस्ट डूइंग लाइक दिस। तो हमने अपने राइट नोस्ट्रिल में वो अंगूठा रखा, लेफ्ट से हम इनहेल कर रहे, आराम से जितना ले रहे हो उतना लो। ओके,
तो हम छोड़ते समय लेफ्ट से छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। तो हमने 7 टाइम्स किया। अभी खाली 7 टाइम्स करने के बाद आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, आप यू कैन टेल मी। मतलब को भी आपको जो भी फील हो रहा है आप लिख सकते हो। आप कामलेस फील हो रहा है, रिलैक्स लग रहा है, शांत लग रहा है, या नॉर्मल लग रहा है, पहले जैसे ही लग रहा है, इट्स ओके। हम सब सीख रहे हैं, ये ऑल आर लर्निंग, इट्स ओके। तो काम लग रहा है। तो प्राणायाम जो है वो आपको बहुत काम एंड रिलैक्स्ड एंड पीसफुल स्टेट पे लेके जाता है। आपके स्ट्रेस, आपके टेंशन्स, आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपकी एंटायर वेलबींग को करता है। तो प्राणायाम हमने आज खाली एक ही करी है। ऐसे ही हमारे गट को रिलेटेड में और भी है, एक शीतलकारी प्राणायाम है, वो भी मैं आपको कल सिखाऊंगी। तो बहुत सारे प्राणायाम है जिससे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स स्टेट। अब हमारी बॉडी क्यों वाइब्रेट कर रही है एक अलग वाइब्रेशन में, वो इसलिए कर रही है क्योंकि हम पास्ट की बैगेजेस की प्रोसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, हम वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं और हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। तो हम 3 जोन पे, और हम प्रेजेंट भी है, तो हम 3 जोन में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी बॉडी जो है बहुत हाइपर है और हमें आगे बढ़ना है। अरे मेरा आगे का चिंता है, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अच्छा उसने ये बोल दिया। तो हम 3 जोन पे काम कर रहे हैं फिलहाल। तो जब आप 3 जोन में काम करोगे तो आप काम एंड रिलैक्स हो ही नहीं सकते, नोबडी कैन, क्योंकि योर बॉडी का सेल इज वाइब्रेटिंग इन दैट, क्योंकि हम सोच रहे कॉन्स्टेंट 60,000 थॉट्स हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे। तो जब तक आप उसको चैनलाइज नहीं करोगे अपने गुड हेल्थ के लिए, आप नहीं उसको काम लेके जा सकते। तो आज का हमारा मेडिटेशन के बदले में प्राणायाम ले रही थी, तो आज मैंने अनुलोम विलोम किया, मगर हम आज फिर भी खाली ब्रेथ वर्क से रिलीज करेंगे अपने डिजीज को, तो हम रिलीज करेंगे। ओके, तो आई रिक्वेस्ट आप जहां भी बैठे हो खाली आंख बंद कर लो, खाली 5 मिनट्स का ही है, आप कभी भी कर सकते हो, दिन में भी ये। तो मैं आपको सिखा रही हूँ, यू कैन फॉलो इट एनी टाइम, है ना। तो आईज बंद कर लीजिए और हाथ को क्रॉस करके बैठ सकते हो आप। तो अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ विजुअलाइज अपने अपने आईज अपनी नोस्ट्रिल्स में रख लिए हैं, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड। आपका अपर बॉडी, शोल्डर्स, चेस्ट एरिया पूरी तरह रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। आपकी मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड। अभी हम अपने अंदर कुछ भी ऐसे हैवी इमोशन, थॉट हम पूरी तरह रिलीज करने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और एक्सेल करते समय बॉडी में कोई भी स्ट्रेस या तनाव पूरी तरह रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज ये आपकी बॉडी से बहुत दूर एक समंदर में जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और
अपनी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस, तनाव, खिंचाव पूरी तरह एक्सेलेशन के साथ रिलीज, रिलीज एंड रिलीज, बहुत दूर जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और एक्सेलेशन के साथ कोई भी आपकी बॉडी में हेवी इमोशन जैसे कि हर्ट, पेन, एंगर पूरी तरह रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। आपकी बॉडी से बहुत दूर एक समंदर में जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और एक्सेलेशन के साथ आपके बॉडी में कोई भी डिजीज है तो पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज, पूरी तरह रिलीज। अच्छी गहरी श्वास और अपनी बॉडी में कोई भी आपको पेन या डिसहार्मोनी एनर्जी अपनी एक्सेलेशन के साथ पूरा ये पेन आप पूरी तरह रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज आपकी बॉडी से ये पूरी डिजीज और पेन बहुत दूर चला गया है, बहुत ही दूर, आप देख ही नहीं पा रहे हो, समंदर में पूरी तरह चला गया है। आपकी पूरी बॉडी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही वाइब्रेंट, आपकी पूरी बॉडी में बहुत ही एक खुशी का लहर आप महसूस कर पा रहे हो। आपकी पूरी बॉडी बहुत हेल्दी एंड वाइब्रेंट है। हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। नाउ बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे हो। बिकम अवेयर, आपने कौन से कपड़े पहने हैं। अभी आप हाथ रब करके अपनी आईज पर रख सकते हो। So thank you everybody for any questions that you want to ask. आप पूछ सकते हो या आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो कुछ तो आप पूछ सकते हो। Thank you Shrikant ji, thank you so much. Thank you Thank you, Smita ji. everyone. Yeah. Thank you so much for attending this session. Thank you. थैंक यू। एंड Yeah. ये वाला जो 5 मिनट्स मैंने आपको बताया, कभी भी कहीं भी किधर भी कर सकते हो, अपने कॉर्पोरेट में, अपने ऑफिस में आप ब्रेक ले Thank you, सकते हो everyone. और कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. So See you tomorrow. Thank you. Bye. okay, bye. Happy guide, happy life. Yeah. Yeah. Okay, bye. Take care.